خدا کے لیے رحم کرے شاہ میر، میرا جسم ابھی بچہ پیدا نہیں کر سکتا، میری عمر ابھی بہت کم ہے۔ شاہ میر کے سامنے ہاتھ جوڑتی، حتیٰ کہ اس کے میں نے پاؤں بھی پکڑے، لیکن بس اس کے سر پر سوار تھا کہ بچہ چاہیے۔ بس آج رات کو اس نے میری ایک نہ سنی اور پوری رات چلو دوبارہ کرتے ہیں۔ شاہ میر نے کھینچ کر دوبارہ اسے اپنے نیچے کر لیا۔ نہیں پلیز، میں بہت تکلیف سے گزری ہوں، مجھے صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ شاہ میر التجاؤں پر بنا کان دھرے ایک بار پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس بار اس کا عمل پہلے سے زیادہ شدت میں تھا۔ کرن کے وجود میں اپنی نسل منتقل کرنے کے چکر میں یہ بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ وہ اب اس بھرپور مرد کی تکلیف دہ شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کچھ ہی دیر میں وہ ہوش آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ رات کے 1 بجے جب وہ گھر آیا تو زینب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی وہ نہانے کی غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ جب فریش ہو کر آیا تو چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت خوش لگ رہا ہے، زینب نے کھانا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے سوال کیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا جو کافی عرصے کے بعد بے حد خوش لگ رہا تھا۔ جی میں بہت خوش ہوں، اور کس بات کو لے کر خوش ہوں بہت جلد آپ کو بتا دوں گا۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ اگر واقعی خوش ہو تو پھر جو کہنا چاہتی ہوں اسے دھیان سے سنو۔ دیکھو، اپنے خاندان پر جو کیس کیا ہے واپس لے لو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکل ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اسی لیے اب ہمیں اپنی زندگی سکون سے گزارنی چاہیے۔ کیس واپس لینے کے نام پر اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے، مگر وہ اپنی ماں کو کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہتا تھا، اس لیے سر جھکا کر کھانے میں مشغول رہا، کیونکہ اسے کرنا وہی تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈوں گی جو تمہاری ہر خوشی کی وجہ ہوگی، اس کے ساتھ ہی پرسکون زندگی گزارنا۔ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا۔ شادی کی بات پر اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ابھی آپ کو میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ پھر اس سے شادی کروائیں گی؟ کیا واقعی تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ زینب کے لیے ایک نئی خبر تھی۔ جب میں اپنی وکالت کی پڑھائی کر رہا تھا تب میری یونیورسٹی کے اندر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی تھی، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا تو کیا نام ہے اس کا؟ زینب کو تجسس ہوا۔ اس کا نام عائزہ ہے، اس نے گریجویٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے تو سوچا اس کے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانے تو پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں ایک وکیل ہوں تو اس کے گھر والے مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو اپنا کیس خود لڑوں گا۔ شاہ میر کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے بیٹا، اور تم کورٹ میرج کر لو گے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر والوں کا بھی رضامند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں میں چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ مسلسل رکاوٹ بنیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قانون کہتا ہے کہ اگر دونوں فریقین میں سے کسی کے بھی گھر والے بلا وجہ کی رکاوٹ ڈال رہے ہو تو لڑکی لڑکا کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ آپ تو میری خوشی بھی خوش ہیں، یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بہت جلد اگر اس کے گھر والے مانیں گے تو آپ کو اس کے گھر بھیجوں گا رشتے کے لیے، لیکن اگر نہیں مانے تو پھر اسے ہی یہاں لے آؤں گا۔ مجھے یقین ہے آپ اسے اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کریں گی۔ ہاں ضرور، وہ بس پھیکا سا ہاں بول پائی، کیونکہ جس حالاتوں کا وہ ذکر کر رہا تھا ایسے حالاتوں کے لیے خود کو تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ کیسی لڑکی میرے لیے پسند کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی ماں سے اس کی پسند پوچھ بیٹھا۔ میں تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی پسند کرتی جو بہت خوبصورت ہوتی، میرے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر بہت پیاری لگتی، بہت شرمیلی، تھوڑی سی شرارتی اور تھوڑی سی بے شرم۔ اپنی ماں کی بتائی گئی خوبیوں پر وہ ہنس پڑا، مگر اچانک ہی اس کے دماغ کے پردوں پر کرن کا چہرہ لہرایا۔ وہ بہت معصوم تھی اور کئی بار اسے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شرم اور بے شرم کا جائزہ لینے کا کبھی موقع نہیں ملا، اور اگلے ہی لمحے کرن کا خیال اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ ماں ایسی لڑکی تو پھر اس دنیا میں نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس دنیا میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ماں ایک بات پوچھوں؟ فرض کریں اگر آپ کو ایسی لڑکی مل گئی مگر اس کے گھر والے زہر سے زیادہ زہریلے اور ہمارے جانی دشمن بھی ہو، تو زینب کو اپنے بیٹے سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، اسی لیے اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔
ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो शाहमीर? माँ बस दिल में आया तो पूछ लिया। अब एक वकील हूँ तो हर तरह के सवाल जवाब करने की मुझे आदत है। तो आप फर्ज करें अगर कभी ऐसी घड़ी आ गई तो फिर आप क्या करेंगी? तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे हमारी जिंदगी में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे वही लड़की चाहिए, दुनिया की किसी दूसरी लड़की से मुझे कोई गर्ज नहीं है। फिर वो पता नहीं है वो उस जवाब की जिद लगाए बैठा था। ज़ैनब ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसने ठान लिया था कि वो जवाब लेकर ही उठेगा। वो नहीं जानती थी ऐसा सवाल क्यों कर रहा है, मगर अब जवाब तो देना था। कुछ देर वो सोचती रही और फिर ऐन शाहमीर के सामने आकर बैठ गई। अगर कभी ऐसी सिचुएशन से मेरा वास्ता पड़ गया तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि वो लड़की तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। अगर वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती होगी तो फिर चाहे उसका घर या खानदान जैसा भी हो, मेरा चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, अपने बेटे की खुशियों के आगे मेरे हर असूल फजूल हो जाएंगे। मैं हर असूल तोड़कर उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। अपनी माँ के जवाब पर वो कुछ देर उनकी तरफ देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर उठा। आप फिक्र नहीं करें, ये बस एक सवाल था जिसका जवाब मुझे मिल गया, और ऐसी सिचुएशन से जिंदगी में कभी आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। मैं किसी ऐसी लड़की को कभी पसंद कर ही नहीं सकता जिसका ताल्लुक आपके दुश्मनों से हो। आपके दुश्मनों की खानदान से जुड़ी हर चीज मेरी दुश्मन है। उसे बर्बाद कर देना मेरा मकसद। ज़ैनब ने एकदम उसे टोका। ये कैसी बातें कर रहे हो शाहमीर? न जाने क्यों इस कदर पुरशिद्दत हुए जा रहा था। वो यकदम होश की दुनिया में वापस आया। कुछ नहीं, बस वैसे ही बोल रहा था। वो दोबारा अपने खाने में मशगूल हो गया। ज़ैनब ने बगौर अपने बेटे की तरफ देखा, जो संजीदा तो बचपन से ही था, लेकिन जब से उसने वकालत की डिग्री पूरी की थी उस दिन के बाद ऐसा लगता था वो पुरइस्रार भी होता जा रहा है। जैसे धीरे धीरे करके उसके सीने में बहुत से राज दफन होते जा रहे हैं। उसके पास एक माँ का दिल था, और एक माँ का दिल कभी कुछ गलत होने का एहसास नहीं दिलाता। रात के 3 बजे का वक्त था। कमरे में पानी खत्म होने के बाद नासिया कमरे से बाहर आई ताकि वो पानी कमरे में ले जाकर रख दे। जब वो किरण के कमरे के करीब से गुजरी तो उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी की दबी दबी सिसकने की आवाज गूंज रही हो, लेकिन अपनी समात का धोखा समझकर वो आगे बढ़ गई। किचन से पानी लाते हुए दोबारा जब वहीं से गुजरी और एक बार फिर यही एहसास हुआ तो उसका दिमाग बेदार हो गया। दोबारा ऐसा महसूस होना कि कोई एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या ये आवाज किरण के कमरे से आ रही थी? वो किरण के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई और कुछ ही देर में वो जान गई कि इसी कमरे से आवाज आ रही है। अंधेरी रात में अगर वो दरवाजा बजाती तो घर वाले जाग जाते, इसलिए खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे के हर तरफ अंधेरा था। हाथ मारकर स्विच ऑन करके जैसे ही उसने सामने का मंजर देखा तो नासिया का दिल धक से रह गया। किरण! वो दौड़कर नासिया के करीब आई। लाइट्स ऑन होते ही उसकी आवाज सुनते ही वो यकदम अपना दुपट्टा ठीक करने लगी, मगर वो सब कुछ देख चुकी थी। उसकी गर्दन पर मौजूद निशान आम नहीं थे। उस नशानात को एक शादीशुदा औरत ही समझती है। ये सब क्या है? उसने किरण के हाथों को अपने हाथों में लिया, मगर कलाइयों पर किसी की उंगलियों के निशान देखकर उसका दिल धक सा रह गया। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या कह दो ये सब झूठ है। किसी ने तुम्हारे साथ इससे आगे वो बोलना नहीं चाहती थी। प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। प्लीज मेरी इज्जत का पास रख लें। आप किसी को कुछ मत बताइएगा। पहले तुम मुझे बताओ ये सब क्या है और किसने किया है तुम्हारे साथ? तुम जानती हो हवेली के मकीनों को इस बारे में पता चल गया तो क्यामत से पहले क्यामत आ जाएगी। तभी तो कह रही हूँ यहाँ से चली जाएं। प्लीज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सारी बात मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं आपको इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। बस आप मेरे कमरे से चली जाएं। मुझसे हमदर्दी मेरे साथ आपको भी बहुत भारी पड़ेगी। आप जानती हैं मेरी इस हवेली में कोई अहमियत नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 दिन तक सामने नहीं गई तो किसी को यह एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे पास यूं ही रही तो सब लोग सवाल करेंगे। मगर तुम मुझे बता क्यों नहीं रही? ये सब किसने किया? छुपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। इसलिए आने वाले वक्त से आगाह किया। मैं आपको बताऊंगी, आप भाई को बताएंगी, फिर घर वालों को पता चलेगा। उसके बाद जो तूफान कुछ दिन के बाद आना है वो अभी आ जाएगा। किरण की बात पर वो जख्मी सा मुस्कुराई। तुम्हारे भाई ने मुझे कभी इतना हक ही नहीं दिया। उसके लिए तो मैं बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ, जिससे बच्चा भी पैदा नहीं हो पा रहा। मुझे तुम अपनी बहन समझ सकती हो। मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ अपनी बहन ही समझा है। इस पूरे घर में तुम ही हो जिसकी हालत मेरी हालत जैसी है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं
तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाई, क्या पता तुम्हारे लिए कुछ कर जाऊं, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती भाभी। मगर मुझे बताओ किरण, मैं तुम्हें कसम देती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारी इज्जत लूटने वाला दरिंदा कौन है? कौन है जिसने ये भी एहसास नहीं किया तुम अभी बच्ची हो और बच्ची के साथ ऐसा करना गुनाह है? वो रोते हुए नासिया के गले से लगी। हालांकि उसके जवाब ने नासिया को हैरत से दंग कर दिया। वो कुछ देर बाद अपनी जगह से हिल नहीं पाई। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मतलब सिर्फ इतना है, आज तक हमारे हालात एक दूसरे से अलग ना थे, आज के बाद हमारा मकसद भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? किरण, साफ साफ लफ्जों में कहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नाजिया का दिल वाकई घबरा रहा था। आप इस खानदान में वारिस लाने का जरिया है, आज के बाद मैं भी वही जरिया हूँ। शाहमीर बलोच, उसने मुझसे निकाह किया है और वो चाहता है इस खानदान का वारिस मेरे पेट से आए। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। शाहमीर बलोच, उसका नाम भी हवेली के मकीनों को नागवार गुजरता था। वह हवेली की बेटी के साथ अब क्या होगा? कमरे में किरण और नाजिया खामोश बैठे थे। गहरी खामोशी वाकई तूफान आने की पहली निशानदेही कर रही थी। उसको रोता देखकर बजाय चुप करवाने के नासिया की आंखों से खुद आंसू बह निकले। आज तक उसे दोनों के हालात एक जैसे लगते थे, मगर अब किस्मत भी एक जैसी निकली। चुप रहना किरण, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अल्लाह करे तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाए। वो बस बोले जा रही थी, उसे कुछ वक्त पहले ही महसूस हो गया था हवेली के दरवाजे पर एक तूफान दस्तक दे रहा है, जिसका दरवाजा किरण के जरिए खुलवा दिया गया था। चाहे कुछ हो जाए किरण, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहली बार नासिया ने खुद को मजबूत बनाने का इरादा किया। तुम इस तरफ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का हवेली के अंदर आना मना है। तुम लोगों की वही दुनिया है, वहीं रहा करो। हसनैन बलोच ने शाहमीर को देखकर गुस्सीले लहजे में कहा, मगर शाहमीर के कान पर जून तक नहीं रेंगी। मेरी दुनिया कौन सी है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे तुम्हारे बाप से मिलना है। बाप तक मत जा। हसनैन 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा तो शाहमीर ने भी 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। बाप से तो मिलना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। दोनों की आंखों में नफरत बराबर की झलक रही थी और कोई भी ना नजर झुकाने के लिए तैयार था और ना ही पीछे हटने के लिए। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी और मेरे बाप से मिलने के ख्वाब देखते हो? तुम्हारा बाप कोई वजीर आजम नहीं है, जाके अपने बाप को बुला, वरना मैं खुद जाकर मिल लेता हूँ। शाहमीर की बात पर उसका पारा हाई हो गया। हवेली में कदम रखने की कोशिश भी की तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देंगे। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। हसनैन की धमकी पर बजाय गुस्सा होने के शाहमीर को बेहद हंसी आई और वो हंसता ही चला गया। अच्छा, तो तुम में टांगे तोड़ने की हिम्मत है? मैंने तो सुना है तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम एक बच्चा पैदा कर सको। एक ना मर्द भला कब से टांगे तोड़ने लगा? शाहमीर के ताने पर उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। हाथ का मुक्का बनाकर इससे पहले कि वो शाहमीर के मुंह पर दे मारता, पीछे से नसीर बलोच की आवाज पर दोनों ने उनकी समाअत देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उनका सवाल शाहमीर से था। नसीर बलोच को देखकर वो तंसिया मुस्कुराया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझसे ज्यादा आपके पास होगा। एक लिफाफा निकाल कर उसने नसीर बलोच की तरफ बढ़ाया। ये कोर्ट की सुनवाई के नोटिस हैं, वक्त पर पहुंचाइएगा। हम किसी सुनवाई को नहीं मानते, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि यही असूल है। दूसरी सूरत में मुझे हर वो हरबा आता है जो मैं आप पर आजमाना नहीं चाहता। उम्मीद है आपको इन सारे हरबों की मालूमात होंगी और ये भी उम्मीद करता हूँ आप नहीं चाहेंगे भरे समाज में आपकी रुसवाई हो। अपनी अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। तो टाइम से पहुंच आएगा। अपनी बात मुकम्मल करके उसने लिफाफा उनकी तरफ उछाला, जैसे जिसे नसीर बलोच ने कैच करना चाहा, मगर वो जमीन पर गिर गया। ये शायद उसने जानबूझकर किया था। तभी नसीर बलोच को हद दर्जा गुस्सा आ गया। जबड़े भींच कर कहर बरसाती नजरों से शाहमीर का, जिसके चेहरे पर तंसिया मुस्कुराहट अब थी, जैसे उनका मजाक उड़ रहा हो। ये का बच्चा हमसे टकराने की कोशिश है, ये चांदा हमने घाट का पानी पिया है। आज तो ये बच गया, लेकिन किस्मत हमेशा साथ देती। शाहमीर
शाहमीर वहां से अपनी अनेक्सी में आ गया। हवेली के मकीनों की नजरों में उन दोनों माँ बेटे के लिए नफरत है, ये वो अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन नसीर बलोच की नजरों में आज उसने बगावत भी देखी थी। सिर्फ नजरों के जाविये पर ही वो समझ गया था कि इस पर कातिलाना हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि नसीर बलोच था। तुम्हें सबका हिसाब देना होगा, अपने लिए इतना ही गड़ा खोदो जिससे तुम सब बाहर आ सको। लेकिन अफसोस, तुम लोग पहले ही इतना गड़ा अपने लिए खोद चुके हो, जहां से खुद बाहर आना तो बड़ी दूर की बात, तुम्हारी आवाज भी बाहर ना आ पाएगी। शाहमीर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा केस के बारे में स्टडी कर रहा था। उसे यकीन था ये केस वही जीतेगा, मगर नसीर बलोच भी अपनी तैयारी करके आएगा। उसने यही सीखा था, भले हम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, मगर अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आयजा बिना दस्तक दिए उसके कमरे में दाखिल हुई। शाहमीर, छोड़ो ये सब। उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर पटकते हुए वो शाहमीर की गोद में आ बैठी। उसकी ऐसी बेपाकी शाहमीर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर फिर भी ज़ब्त का मुजाहरा कर गया। गोरी रंगत और अपने पतले पतले नकूश के साथ वो उस वक्त उसके सामने मौजूद थी। कहीं जाने की तैयारी थी। शाहमीर ने उसे इतना तैयार देखकर सवाल किया, तुमसे मिलना ही सबसे बड़ा काम है, तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। वो शाहमीर के खूबसूरत सरापे को निहार रही थी। अपनी नाजुक उंगलियों से उसका कॉलर पकड़ते हुए वो धीरे धीरे उसके होंठों पे झुकने लगी। इस वक्त मैं बहुत जरूरी केस पर काम कर रहा हूँ। शाहमीर ने आयशा के माथे पे उंगली रखकर उसे खुद से दूर किया। मुझसे ज्यादा जरूरी है केस। तुमसे जरूरी तो कुछ नहीं, मगर हमारे फ्यूचर के लिए ये केस जरूरी है। शाहमीर ने उसकी कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू हायल किए तो आयशा को जैसे सुकून मिल गया। शाहमीर, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा, मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपना बना लो, अपने साथ ले जाओ, खुद में संभालो। वो दोबारा उसके होंठों पे झुककर इस बार शाहमीर के अनाबी होंठों को छूने में कामयाब रही। उसके होंठों पे अपना हल्का सा लम्स छोड़ के वो उठ खड़ा हुआ। आयशा ने हैरत से उसके अमल को देखा जो उससे 2 कदम की दूरी पर जा खड़ा हुआ। मैं भी यही चाहता हूँ, हम एक हो जाएं, इसलिए मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, मगर तुम्हारे घर वाले मान ही नहीं रहे। तो तुम्हें कौन कह रहा है मेरे घर वालों की फिक्र करो। वह ऐन उसके मुकाबिल आई और शाहमीर के सीने पर अपने नाजुक हाथ रखे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम उनके सामने जाओगे तो वो 1 मिनट में मान जाएंगे, मगर तुम वहां जाने के लिए मान ही नहीं रहे। जब वो तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दे रहे तो मेरे जाने का क्या फायदा होगा। वो मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगा, मगर आयशा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच कर उसने अपने करीब किया। जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मुझसे दूर मत जाया करो। वो पुरशिद्दत हुई। शाहमीर ने उसकी आंखों में एक जुनून देखा। क्या मेरे बच्चे को पैदा कर सकती हो? ये आयशा के लिए एक अजीब सवाल था। ये कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे कहाँ से आ गए? जब मेरे इतने करीब आने के दावेदार बनोगी तो बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे, लेकिन अभी क्यों? अभी हम जवान हैं, हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, ना कि बच्चों के झंझट में पड़कर अपनी इन हसीन लम्हात को जाया करें। ठीक है, अभी मैं केस को देख लूं, फिर तुम्हारे घर वालों के पास भी चलेंगे। वो उससे अपना गिरेबान छुड़वाता फाइल उठाकर सोफे पर जा बैठा। आयशा समझ गई उसे जवाब अच्छा नहीं लगा, तभी सोफे पर बैठे शाहमीर की गोद में जाकर दोबारा बैठ गई। तुम नीचे भी बैठ सकती हो। शाहमीर ने साफ लफ्जों में अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। लेकिन मुझे तुम्हारी गोद में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, वो भी 1 नंबर की ढीठ थी। अच्छा सुनो, मैं मजाक कर रही थी, जब कहोगे हम बच्चा पैदा कर लेंगे। वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? शाहमीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जानते हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। लेकिन फिलहाल तो तुम कुछ और ही करने का सोच रही हो, तो तुम मेरी सोचे पढ़ रहे हो। हाँ बिल्कुल, वो इकरार कर गया। अगर पढ़ रहे हो तो फिर वो क्यों नहीं करते जो मैं चाह रही हूँ? मेरी जान, जो तुम चाह रही हो उसे करने के लिए हमें शादी करनी होगी। तो तुम्हें कौन रोक रहा है? एक वकील हो, अभी शादी कर लेते हैं। नहीं, मेरी माँ कहती है कि शादी के लिए 2 खानदानों का रजामंद होना जरूरी है। तो फिर मैं चाहती हूँ शाहमीर, तुम जल्द अज जल्द मेरे घर आओ। जैसे ही तुम मेरे घर आओगे वो लोग तुम्हें मेरा रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर हम एक हो जाएंगे, हमारे वजूद एक हो जाएंगे। तुम नहीं जानते तुम्हारी कुर्बत के लिए मैं कितना तड़पती हूँ। कोई भी लड़की तुम्हारी तरफ देखे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, तुम्हें समाज जाना चाहती हूँ। उसकी इतनी बेपाक गुफ्तगू पर वो पहले
पहलू बदल के रह गया। कम से कम एक लड़की को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये शाहमीर का ख्याल था। ठीक है, तुम इस वक्त जाओ, हम बाद में मुलाकात करेंगे। फिलहाल मैं बहुत जरूरी केस पर काम कर रहा हूँ और ये केस हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। वो उसके गाल थपथपाता उठने की कोशिश करने लगा, मगर आयशा ने उसे दोबारा अपनी बाहों में जकड़ा। मैं जा रही हूँ, मगर जाते जाते अपना तोहफा लेकर जरूर जाऊंगी। उसने शाहमीर की तरफ मायने खेज नजरों से देखा, जिसे समझकर शाहमीर आंखें बंद करके रह गया। और आयशा ने झुककर उसके लबों को छुआ। जब भी मैं तुम्हारे करीब होने की कोशिश करती हूँ तो तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। आयशा ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम तो जानती हो मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। मैंने पहले कभी किसी लड़की को नहीं छुआ और शादी के बाद ही मैं तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाने का हकदार हूँ। मुझे तो लगता है शादी के बाद भी मुझे तरसना ही पड़ेगा, लेकिन फिक्र ना करो, शादी के बाद मैं खुद तुम्हारी इज्जत लूट लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। वो मुस्कुराता हुआ उसके गाल खींचता उठ खड़ा हुआ। आयशा जा चुकी थी। कुछ देर काम करने के बाद आखिरकार उसे थकान महसूस हुई तो कुर्सी की पुष्ट पर सर गिरा कर आंखें बंद कर ली। मगर आंखें बंद करते ही किरण का चेहरा नजरों के सामने घूम गया। डरी सहमी मुसलसल रोती इल्तिजा करती। उसकी कुर्बत में वो किस तरह खौफजदा थी। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। शाहमीर ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहा था, मगर फिर भी उस पर अपनी शिद्दतें निछावर किए बगैर नहीं रह पाया। नरम व नाजुक से वजूद की हिद्दत में कुछ ऐसी अट्रैक्शन थी कि शाहमीर को दोबारा उसकी वजूद की तलब होने लगी। कुछ देर पहले आयशा उसके होंठों को छू कर गई थी, लेकिन चाहकर भी शाहमीर के दिल में वो चाहत नहीं उभर पाई जो किरण के नरम और मुलायम होंठों को छूने के बाद जज्बात भड़कते थे। ऐसा क्या है तुम में, मेरे दुश्मन की बेटी हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हवासों पर छाने की। मुझे अगर तुम्हारी तलब हो रही है तो मैं ये तलब मिटा कर रहूंगा। आज रात तुम्हें यूं मेरे हवासों पर छाने की सजा भुगतनी पड़ेगी। न जाने क्यों शाहमीर को गुस्सा आ रहा था। वो चाहकर भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। फिर उसे याद आया वो कैसे उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, मगर शाहमीर को उस पर जरा तरस नहीं आया और अपने काम को अंजाम देकर ही उसे हवेली के अंदरूनी हिस्से में छोड़कर आया। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके दिल में तरस आया कि नहीं, कि वो एक बच्ची है, उसके साथ ऐसा जुल्म बार बार सही नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके जज्बात सर्द हो चुके थे। तुम मेरी बीवी हो, मुझे हक है तुम्हारे करीब आने का। नहीं, तुम वो मोहरा हो जिससे मैं ये जंग जीतूंगा। इससे ज्यादा तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो और तुम ही हो जो मुझे मेरा वारिस ला कर दोगी। जब बलोच खानदान का वारिस उनकी लाडली के पेट से आएगा, जब उन्हें पता चलेगा घर के अंदर ही एक ऐसा इंसान मौजूद है जो उनकी तबाही की वजह बना, तब बलोच खानदान के चेहरे देखने लायक होंगे। मैं देखना चाहूंगा अपनी ही बेटी के हाथों बर्बाद होकर उन्हें कैसा महसूस होता है। ओ लड़के, इधर आ, ये क्या कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम गुलाब लेकर आए थे। हसनैन का बस नहीं चल रहा था, उसका दिमाग खोल दे। हर दूसरे दिन वो बगीचा सजाने के लिए नए गुलाब के पौधे मंगवा लेता था और पुराने पौधों को बाहर फेंक देता था। साहब साहब साहब, वो भागता हुआ अपने रुमाल से हाथ साफ करते हुए आया। ये क्या फिल्म चला कर रखी हुई है? यह हवेली क्या तुम चलाते हो जो अपनी मर्जी से खर्च करते हो? हसनैन का गुस्सा सातों आसमान पर चढ़ा हुआ था। हर दूसरे दिन एक ट्रॉली भर के यहाँ गुलाब आते हैं। कुछ देर सोचकर वो अपने रुमाल को हवा में लहराता हुआ गोल गोल घूम गया। मेरे खर्चे पर नहीं चलती साहब, तो फिर ये फजूल की खर्चियाँ किस खुशी में करते हो? अगर मैंने डैड को तुम्हारी ये करामतें बताई तो दूसरे ही दिन तुम हवेली से बाहर नजर आओगे। मैं हवेली से बाहर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। आप करके देख लें। वो बच्चों की तरह जमीन से ऊपर उछलने लगा। उसका दिमाग नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था, इसलिए कोई उसकी बातों का गुस्सा नहीं करता था, लेकिन हसनैन को उस पर गुस्सा आता था। एक तो तुम लोगों की अलग गुंडागर्दी चलती है। पता नहीं डैड ने भी कैसे कैसे लोगों को लाकर हवेली में रखा हुआ है। आइंदा अगर बेफजूल के पौधे इस हवेली के अंदर आए और तुमने हवेली को जंगल बनाने की कोशिश की तो इसी जंगल के कोने में तुम्हें दफन कर दूंगा। वो उसे धमका कर जाने के लिए मुड़ा, मगर शौके की बात पर उसके पांव वहीं रुके। मैं तो बस इसलिए नए पौधे मंगवाता हूँ क्योंकि पुराने पौधों पर फूल नहीं लगते, और जिन पे फूल नहीं लगते वो मुझे अच्छे नहीं लगते। वो न जाने ये बात क्यों कह रहा था, मगर हसनैन के दिमाग में एक बल्ब चल गया। कहाँ थी तुम? मैं किरण के पास थी। वो जैसे ही कमरे में आई, हसनैन ने उसे दबोच लिया। क्यों, उसकी मौत हो गई है जो तुम उसके पास इस वक्त थी? अल्लाह ना करे उसे बुखार है, तभी वो खाने पर भी नहीं आई। तुम्हें लगता है हवेली में किसी को उस मनहूस के बुखार से फर्क पड़ता है? उसकी कमीज को उतार कर हसनैन ने बेड पर धक्का दिया। नहीं, मैं बस इंसानियत
बहाने ढूंढ रही हो मुझसे दूर जाने के? क्या चाहती हो मेरा वारिस जल्द अज जल्द इस दुनिया में ना आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? सौतन चाहती हो? खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, मैं आपके लिए हर दम हाजिर हूँ। आप जो चाहें कर लें, मगर सौतन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नाज़िया के आंसू जारी हो गए।